अब एक और बड़ा मैच, पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला आपके सामने। एनआर बोरपाड़ा बनाम वकी स्पोर्ट्स मापोली। टॉस जीता है एनआर बोरपाड़ा के कैप्टन जावेद ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। अब आइए दोस्तों, एक अगले मुकाबले की तरफ हम चल रहे हैं जहां पर एनआर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इब्राहिम खान बिल्डर और अनस शकील शेख ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। कमेंटेटर हमारे बहुत ही मशहूर कमेंटेटर जकी नाचन ने इस वक्त वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। और जकी नाचन, हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। एनसीपी कप में शुरू के बादशाह हैं, जब कमेंट्री करते हैं तो बहुत खूबसूरत उनका अंदाज रहता है। जकी नाचन, फिर से मैं आपका इस्तेकबाल करता हूं। जकी नाचन भी एक ऐसे कमेंटेटर हैं जिनकी कमी हर जगह महसूस की जाती। सो बैक टू क्रिकेट नाउ। NR won the toss and they decided to bat first. Two openers on the ground. NR changed their strategy, once more sending Bindas. And Shailesh Gaikwad, both team all the best. All the best for NR and all the best for Waki Sport Mapoli. Play begin now. It's going to be Umesh open the bowling attack. Facing him batsman Bindas. Bindas and Sandeep Madhvi. All the best from Hamza Bhure, Mapoli to Waki Sport Mapoli. So back to cricket now is going to be Umesh. Right arm over the wicket. Here he go. Goes to Bindas, left away in the air. Shaz Thanwal is there. Oh! He's dropped. This is the dangerous for Waki Sport because Shaz Thanwal is dropped the catch of Bindas. What a great opportunity was there for the fielder. Bindas dragged that one from well outside the off stump, and it was a simple chance. Look at there. Oh dear, oh dear. Put it down. And all the best for both team from Raju, Kalyan Road, Maggie B and Maggie's best friend. Bindas gets a life. Very lucky man indeed. Subhan Patel, all the best for Waki Sport Mapoli. This time left, over long on, no chance, 6 runs. Slot, lofted stroke over the boundary, and he opens his account with a maximum. Yes, lot of compliment for Waki Sport Mapoli. Irfan Bhure, Shadab Kutkar, Farhan Patel, Naushad Patel, Zaki Nachan, Farhan Thanwal, Imran Shah. This time away from the off stump, white signal from umpire. 1 to score now. NR Borpara 7, 8 for no wicket. Disappointment, frustration for the bowler. Shaz Thanwal dropped the catch of very first ball, then maximum from Sandeep Madhvi. Yes. Welcome Pappu Motiwala in NCP Cup. And here goes Umesh.
Ball this time leg cutter goes his back foot, waited to comes to him. Punch over the infield through the extra cover fence for 4. Leg cutter waited for the ball to come and punch it very hard for 4. Yes, he read earlier that was a leg cutter goes his back foot and punch over the infield. Couple of bounces cross the extra cover boundary for 4. So his score bouncing to 12. This is the attacking start from NR Borpara. Here goes Umesh. Goes past us. Facing him, Sandeep Madhvi. Goes to Madhvi. This time it's in the air. There's the fielder. Yes, he's out. Caught by Asif Sheikh at 1. Out for 10. ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा. ये तो सिक्सर बताया जा रहा है, पूरे ओवर को बताया जा रहा है जो अब तक हो चुका है इस ओवर में. अली पटेल और आफ्ताब पटेल ने इस वक्त वकी स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा. इमरान शाह हमसे जुड़ते हुए आपका हम इस्तेकबाल करते हैं और आपसे इल्तिमास है कि आपको वीआईपी डाइस पे आना है. इमरान शाह. उमेश बिंदास के लिए कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा, गोली की रफ्तार 4 रन. उमेश इस मरतबा अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन किया था, बैकफुट पे खेलना चाहते थे, बिंदास बीट हुए. एक ओवर की समाप्ति पे कुल रन बने एनआर के 16. बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं. ये देखिए किस तरह से कट के अंदर की जानिब आई थी और पिछले पांव पे जाके खेलना चाहते थे बिंदास. एक ओवर 16 रन. बहुत ही धमाकेदार शुरुआत देख रहे हैं हम एनआर बोरपारा की. नए बैट्समैन जो आए हैं दीपक मडवी, हार्ट ऑफ भिवंडी, और क्या गजब के खिलाड़ी हैं. से मानो हल्ला बोल दिया है गेंदबाजी पर वकी स्पोर्ट्स के. गेंदबाजी के लिए बुलाया गया आसिफ शेख को. आसिफ शेख का भी जो फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ही खर्चीले साबित हो रहे हैं. बिंदास का जो कैच सीफर पे छूटा था वो अब महंगा पड़ता हुआ. इस वक्त तो बल्लेबाजी कर रहे हैं 5 पर. दीपक मडवी सामना करें आसिफ शेख का. इस मरतबा ड्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन दीपक ने भी आस छोड़ दी थी. ओवर थ्रो हुआ, बैकअप को कोई नहीं आया. तीसरे के लिए जा रहे हैं और गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. ये क्या हो रहा है? फील्डिंग हो रही है या फिर जिस तरह से गेंदों से खेला जा रहा है? 5 रन स्कोर में बढ़ते हुए दीपक मडवी का खाता खुलता हुआ 5 रनों से, और कुल स्कोर 21 पे पहुंचा है.
एक बार फिर से गलती करने वाले खिलाड़ियों में हम देखें तो शास ठानवाल, यहाँ पर डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, डायरेक्ट हिट लगा नहीं। खिलाड़ी काफी दूर से बैटिंग करने वाले दो खिलाड़ी पहुंचे, देखिए जिसमें उन्होंने शिकस्त दी थी एनआर बोरपाड़ा को। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए इस मरतबा कट किया इनफील्ड के ऊपर से, अच्छी फील्डिंग डीप में 2 रन बनाए, पूरी तरह बल्ले पे नहीं आई थी बिंदास के। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एनआर का 23 रन। इस मैच की विजेता टीम पहली टीम रहेंगी जो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी एनसीपी कप के। फरदीन ठानवाल, फरहान ठानवाल, उमर ठानवाल, शहबाज ठानवाल और नवाब पटेल ने ऑल द बेस्ट कहा है वकी स्पोर्ट्स को, लेकिन ऑल इज वेल नहीं। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए आसिफ शेख, इस मरतबा स्लॉग स्वीप मैक्सवेल के अंदाज में 4 रन। सत्ताईस रन 1 विकेट के नुकसान पर इस समय एनआर बोरपाड़ा 27 पे पहुंचा स्कोर। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं आसिफ शेख। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा बॉलर बैक ड्राइव, हाथों से गेंद छिटक गई, रवीश बॉन्ड ने गेंद को उठाया, 1 रन। 28 पे पहुंचा एनआर बोरपाड़ा का स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। 0 पे कैच छूटा था बिंदास का शास ठानवाल के हाथों से, अब वो 12 पे बल्लेबाजी कर रहे। दीपक मडवी 5 पे खेल रहे हैं। आफ्ताब अंसारी हमसे जुड़ते हुए, सेक्रेटरी आपका इस्तेकबाल है। आसिफ शेख फुल टॉस गेंद ड्राइव करते हुए मिड ऑन पे, फील्डिंग अच्छी की वहां पर, 1 रन जरूर बना। शास को अब सर्कल में बुलाया है, गेंदे भी शास ठानवाल का पीछा नहीं छोड़ रही, वो जहां जा रहे गेंदे वहां जा रही। कई बार ऐसे ही हुआ कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। कई बार ऐसा होता है क्रिकेट में। बिंदास फिर से गेंद शास ठानवाल से दूर जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के तरफ, बढ़िया फील्डिंग इरशाद अंसारी की, 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए। पूर्वानुमान के साथ गेंद को फील्ड किया था। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 31, 1 विकेट गंवाने के बाद। मैंडेटरी पावर प्ले खत्म हो चुका है। विक्टोरियन के कैप्टन फरजान अब्दुल्ले, नरेश माली, सैयद साहब भी नजर आ रहे हैं। आप सभी का इस्तेकबाल है। लौट चलते हैं खेल की तरफ। 2 ओवर और 31 रन। बेहतरीन शुरुआत एनआर बोरपाड़ा की, पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, इरशाद अंसारी एक हैट्रिक ले चुके हैं इस एनसीपी कप में। बिल्कुल, उनका जो हैट्रिक है
वो भी सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। पहले सिक्सर का हैट्रिक दिया और बाद में विकेटों का हैट्रिक लिया। इरशाद की पहली गेंद, ओ बहुत बढ़िया यॉर्कर, एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाए दीपक मडवी, मिड ऑन पर खेला 1 रन के लिए। इस बार जाने दिया ऑफ स्टंप के बाहर, खेलने की कोशिश नहीं की वहां पर बिंदास ने, अंपायर की तरफ देख रहे थे पलटकर। हालांकि काफी जगह थी हाथ खोलने के लिए, कट मार सकते थे उस पर, पॉइंट अंदर था और गली डिपिश गली में एक खिलाड़ी था, तो बाउंड्री पर वहां पर प्रोटेक्शन नहीं था ऑफ साइड में। इरशाद के पास भी अच्छा खासा अनुभव है नॉन पावर प्ले ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए। गेंद हवा में और स्टेडियम के बाहर। ओवर पिच गेंद थी, फ्रंट लेग को अलग किया, बल्ले के बीचों बीच गेंद हवा में हिचकोले खाती हुई 6 रन। ये तो बहुत ऊंची गई थी, काफी अपॉर्चुनिटी थी एरोस्टेस के लिए। इसी तरह के स्ट्रोक्स खेलते हैं बिंदास, जैसा नाम वैसा काम रहता है उनका। रन संख्या 38, 1 विकेट के नुकसान पर। एनआर के बल्लेबाजों को भी पता है कि विकेट बहुत अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, और वकी स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी भी अच्छे फॉर्म में है, तो एक बड़ा टारगेट यहां पर रखना चाह रहे हैं। दीपक मडवी के लिए भादवर से दिलीप मात्रे और फोन कॉल ना करें, मैसेज करें। अगर समय मिला तो आपके मैसेज पढ़ सकते हैं हम। अगर ज्यादा आ गए तो फिर मजबूरी रहेंगे ऑफलाइन करना। गति परिवर्तन और उसमें फंस गए बिंदास, अच्छा कैच। मेरे रिश्ते का मैं तूने पहली नजर। मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे बलवंत। स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन 2 विकेटें अब तक एनआर गवा चुकी। धीमी गति की गेंद से विकेट प्राप्त किया इरशाद अंसारी ने। 20 रन बनाकर आउट हुए बिंदास, सिर्फ 10 गेंदों का सामना किया, 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाए।
बलवंत नंबर 4 पर आए हैं। बलवंत ने 29 रनों की बहुत बेहतरीन पारी खेली थी पिछले मैच में, और खास बात उसमें यह थी कि वी में बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेले थे सीधे बैट से। संदीप पाटिल ने दोनों टीमों को ऑल दी बेस्ट कहा है। जून नादुर्की से सूरज कामले ग्राम पंचायत सदस्य मापोली ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। महेंद्र पाटिल खारबांव, मेरे ख्याल से राष्ट्रवादी थाना जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। पिछले मैच में आफ्ताब की अच्छी गेंदबाजी काम नहीं कर पाई थी बी इंडियन के सामने, और हमारे डीजे मैन कभी से बजा रहे थे रश के कमर। अजय करत, आप चाहे चांद कहिए, आप चाहे महताब कहिए, आप चाहे उसे कमर कहिए, चाहे मैं कहिए, बहुत से नाम हैं चांद के। इसीलिए उस दिन मैंने आपको कहा था कि महताब और आफ्ताब के चक्कर में आप ना पड़िए, वरना आप बेताब हो जाएंगे। बीच में लड़ाई होती हुई, खुद अपने हक के लिए कभी न लड़ सके हम। इरशाद अंसारी गेंदबाजी कर रहे हैं। रवि नाइक ने ऑल द बेस्ट कहा है दोनों टीमों को। फुल टॉस गेंद भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। तोहफे मिल रहे हैं उनको। उनका खाता 5 रनों से खुला था, ओवर थ्रो हुआ था, और अब ये फुल टॉस गेंद, बहुत ही आसान गेंद खेलने के लिए। रन संख्या 44 पर पहुंच चुकी है। इस समय पोगाव से एनसीपी ट्रॉफी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है महेश बारशी जी ने। रन रेट बहुत ही बेहतरीन एनआर बोरपाड़ा का। इरशाद अंसारी फिर से महंगे साबित होते हुए 13 रन इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं। इस बार आगे रखा ड्राइव करते हुए, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर तैनात। सिंगल से ओवर की समाप्ति। 3 ओवर्स के बाद 45, 2 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। रन बने, बहुत अच्छा रन रेट चलता हुआ एनआर बोरपाड़ा का 15.00। देखना है बड़ी मिडल कॉन्फ्रेंस होती भी। क्या गेंदबाजी के लिए सरफराज भूरे, यस। Cricket now is going to be Sarfraz Bhure
brought into the attack. Is the best bowler of the tournament in late Rajiv Gandhi Trophy previous year. But in this season, Sarfaraz is not playing lot of tournaments. I think in first match Sarfaraz not include in 11. In second match also not include in 11. First time in NCB Cup. First delivery of Sarfaraz Bhure in NCB Cup. हाजी समझ से ट्रेन से उनको आक्रमण पर लाया गया है। सामना कर रहे दीपक मडवी। बहुत बढ़िया गेंद, कैच, आसान सा कैच छूटा है वहां पर। बहुत बेहतरीन गेंद थी, पड़ने के बाद काफी तेज गति से अंदर की तरफ आई थी। बहुत ही सरल अवसर, वैभव पाटिल कैच नहीं कर पाए। ये देखिए शार्प इन कटर, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, सिटर, इससे आसान कैच और क्या हो सकता है एक विकेट कीपर के लिए। काफी महंगा साबित हो सकता है वकी स्पोर्ट्स के लिए। बढ़िया गेंद, ओहो, कुछ भी समझ नहीं पाए थे दीपक मडवी। फिर से इन स्विंग, बहुत ही खूबसूरत गेंद। हालांकि कैच छूटा था वहां पे दीपक मडवी का। दो अच्छी गेंदें, ये देखिए क्या वहां पे स्विंग हुई थी गेंद टिप्पा खाने के बाद। कॉरिडोर अनसर्टिनिटी से पहुंची थी विकेट कीपर के दस्तानों में। शार्प इन कटर्स कर रहे हैं। मानो लेदर क्रिकेट में जिस तरह से रिवर्स स्विंग देखने को मिलता है, वैसे इस बार आगे रखा था, रन के लिए भागते हुए रन पूरा किया। अच्छी वापसी की है सरफराज ने। और 3 गेंदों को हम देखें तो उन्होंने धोखा भी नहीं दिया है वकी स्पोर्ट मापोली को। रवि नाइक जिन्होंने कमेंट्री पैनल की सराहना की है, हम आपका विशेष धन्यवाद कहते हैं रवि नाइक। बहुत अंतर देखने को मिल रहा है पहले 3 ओवर्स की गेंदबाजी में और इस ओवर की गेंदबाजी में। बलवंत पहली बार स्ट्राइक पर। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी एनआर के लिए दक्षता स्पोर्ट्स चाविंद्रा के विरुद्ध 29 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। काफी जगह दे बैठे, पंच किया, गैप में खेला है लेकिन डीप में फील्डर तैनात। 2 रन पूरे। हालांकि लगभग वाइड गेंद पे बल्ला चला दिया था वहां पर बलवंत ने। सुना है अजय गरते बलवंत पे कोई गाना बना है? जी बिल्कुल, गिरामीन में भी यह जुनून है, गाने के शायद बोले कि बलवंत ने 6 मारा। अब मारते कब है वो देखेंगे हम। यह मराठी में है, बहुत पॉपुलर खिलाड़ी है बलवंत। देवडूंग ग्रामीण से खेलते हैं बलवंत। बढ़िया गेंद, ये सरफराज बुरे हैं। पिछले साल तो हमने देखा था की ऑफ सक्सेस जो रहा था वकी स्पोर्ट मापोली का, जब भी वो चले, जब भी कहा था ना सरफराज धोखा नहीं देंगे, अगर उन्होंने धोखा नहीं दिया था तो मापोली उस मैच को जीती थी। धार नजर आ रही है सरफराज की गेंदों में। गेंद को काफी कट करा रहे हैं। रफ्तार बहुत अच्छी है उनके पास। इस बार कुछ ज्यादा ही बाहर निकाला था वाइड, लेकिन इन कटर बहुत अच्छे डालते हैं। ये ज्यादा बाहर कर बैठे थे वो। इस ओवर में रनों पे रोक लगा दी है सरफराज बुरे ने।
केवल 4 रन अभी तक आए हैं इस ओवर से। राइट आर्म ओवर द विकेट, सरफराज भूरे। ओवर पेज ड्राइव किया, बहुत बढ़िया शॉट, मौका नहीं फील्डर के पास, चौका। जबकि उसी ट्रॉफी में चौकों का जो कीर्तिमान था वो 538 का था। चौकों के हैट्रिक का नया कीर्तिमान एनसीपीपी में बन चुका है और देखना है कि 500वां चौका, बहुत दिलकश स्ट्रोक खेला था, बल्ले के नीचे गेंद को दिया था सरफराज भूरे ने। 4 ओवर के बाद 53 रन 2 विकेटों के नुकसान पर एनआर बोरपाड़ा। खेल की शुरुआत होती भी पानी वहां पे ले जाया गया है। 4 ओवर 53 रन। कल 4 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें 3 क्वार्टर फाइनल और 1 सेमीफाइनल, और सुपर फ्राइडे में 1 सेमीफाइनल और 1 मेगा फिनाले। जो टीम के चैलेंज बचे हैं उसमें विनर है, उसमें जानवी है, उसमें बी इंडियन है। ये मैच की दोनों टीमें अभी तक हैं। उसके बाद पायनियर है और साथ ही साथ नवाब स्पोर्ट्स है। ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम जो इस वक्त टोल नाका पे चल रहा है पड़गा के, वहां पे बीसीसी बोरियोली पड़गा आदित्य कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। उसका कारण यह है कि शाहिद खान अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, जरार मुल्ला अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। खेल की शुरुआत होती हुई उमेश को बुलाया गया इस एंड से। सामना करेंगे दीपक मडवी। आज दीपक मडवी बहुत ही शांत क्रिकेट खेल रहे हैं, एक सिक्सर जरूर जरा है उन्होंने, और कुल मिलाकर 15 पे बल्लेबाजी कर रहे। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फुल टॉस गेंद भेज दिया है मिड विकेट पर, 6 रन। नहीं है उनको जिस तरह से गिफ्ट मिल रहे हैं। नहीं, जन्मदिन उनका 5 जनवरी है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको दिन से कोई परवाह नहीं रहती ना महीनों से, उनको अपने खेल की परवाह रहती। दूसरी बार जूसी फुल टॉस मिली उनको, अपना मौका ताड़ा और 6 रन हासिल किए। रन संख्या 59 2 विकेटों के नुकसान पर। 4 जनवरी उनका जन्मदिन है। इस मरतबा बल्ले की जड़ से टकराई, अच्छी लेंथ थी, विकेटों में रखा था डॉट गेंद। स्कोर है एनआर बोरपाड़ा का 59 रन। अरफात पटेल कुवैत में इस मैच को देख रहे हैं और कुवैत से उन्होंने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। अरफात पटेल। इस मरतबा धीमी गेंद थी, वाइट। 1 रन से स्कोर 60 रनों पे पहुंचा है एनआर बोरपाड़ा का। एनआर बोरपाड़ा 2 कप को जीत चुकी है, एक तो पावर कप शेलार और एक एकता कप पड़गा। वेरिएशन बॉल डालने का प्रयास, गति परिवर्तन लेकिन दिशाहीन, और ये गेंद करना थोड़ा सा जोखिम भरा भी रहता है क्योंकि ठिकाने पर गिरी नहीं तो फिर मार भी पड़ती है, जैसे कि उमेश के साथ भी हुआ। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि प्रार्थना स्पोर्ट्स को 3 ओवर में वकी स्पोर्ट ने 72 रन बना लिए थे और कल 98 रन बनाए थे। फॉर्म में बहुत चल रहे वैभव पाटिल 100 के ऊपर रन बना चुके अभी तक।
एनसीपी में। फुल टॉस गेंद, कंट्रोल शॉट, गैप में गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ने क्या इशारा किया है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन दीपक ने जरूर किया है कि वो अटैक करेंगे। ये देखिए एक और आसान सी फुल टॉस गेंद उनके लिए, प्लेसमेंट अच्छा था, 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया। 25 पे पहुंचे दीपक मडवी और एनआर के स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया 64 रनों पर। डिसिप्लिन क्रिकेट का जो अवार्ड है उनको 3 मर्तबा मिला है। लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अगर देना हो किसी को तो उन्हीं को देना चाहिए। फुल टॉस गेंद भेज दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर, वाइडिश में, 6 रन। एसीपी मेघ राजानी साहब पहुंच चुके हैं, हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। एनसीपी कप में 1 मैन शो खालिद गुड्डू और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से। हमारे बीच इस वक्त आगमन हो चुका है पश्चिम के, वेस्ट के सम्मानीय एसीपी नरेश मेघ राजानी जी का। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। एनसीपी कप में ये आप देख सकते हैं उनको अपने टीवी मॉनिटर पे, पश्चिम के एसीपी नरेश मेघ राजानी। आफ्ताब अंसारी उससे कुछ चर्चा करते हुए उनसे ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि वैभव जिस तरह फॉर्म में चल रहे हैं, दीपक मडवी को भी पता है कि लक्ष्य क्या रखना है। एनसीपी कप सदाबहार क्रिकेट खेलते हुए दीपक मडवी। इस मरतबा आगे रखा था, बहुत खूबसूरत बॉलर बैक ड्राइव, इरशाद अंसारी ने गेंद को उठाया, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है एनआर बोरपारा का 71 रन, और विकेटों को हम देखें तो 2 विकेटें अब तक गंवाई है। विकेटें काफी हाथ में है एनआर के। केवल सरफराज भूरे ने किफायती ओवर किया था जिसमें 8 रन केवल खर्च किए थे उन्होंने, उनके अलावा सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए हैं। मजाज भुरे, बिलाल भुरे, शादाब कोतकर और इब्राहिम खान बिल्डर ने वकी स्पोर्ट मापोली को ऑल द बेस्ट कहा है। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए उमेश। दीपक मडवी 36 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 32 पर। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, ऑफ वॉली पे लेके लॉन्ग ऑफ पे आसिफ शेख के पास 1 रन। अच्छा पिकअप और अच्छा थ्रो किया था पहले बाउंस पर। 5 ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर है एनआर बोरपारा का 72 रन, 2 विकेटों के नुकसान पे। लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में यही कुछ समय था जब समद नगर स्पोर्ट्स के सामने वैभव पाटिल और शाज ने 103 रनों की पार्टनरशिप की थी। यहाँ पर अपना कोटा पूरा किया 2 ओवर्स का उमेश ने, बहुत महंगे साबित हुए, 35 रन खर्च किए, 1 सफलता मिली। आसिफ शेख ने 1 ओवर में 15 रन दिए हैं, इरशाद ने 1 ओवर में 14 रन और सरफराज ने 1 ओवर में 8 रन। खेल की शुरुआत होती भी सरफराज भूरे को कंटिन्यू रखा है, बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में। देखना है कि आज
हालांकि मौसम तो ऐसा लग नहीं रहा है, हवा अभी भी ठंडी बह रही है, लेकिन पानी बहुत पिया जा रहा है और कई टीमें दूसरी टीमों को पानी पिला चुकी। इस पारी में 2 कैच छूटे। सबसे पहले बिंदास का 0 पर कैच छूटा, उन्होंने 20 रन बनाए। उसके बाद दीपक मडवी का कैच छूटा था जब वो 13 पर खेल रहे थे, अब 32 पर खेल रहे हैं। यस, ये दोनों कैचेस काफी महंगे पड़े हैं। 19 और 15, 19 और 20, 39 रन कैच छूटने के बाद बने दोनों खिलाड़ियों के। लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ गेम, ये खेल का एक हिस्सा है, ना कि हादसा। खेल की शुरुआत होती भी सरफराज भूरे, अच्छी गेंद छोड़ दिया वहां पर। गेंद लाइन के अंदर थी और विकेटों के बाद ज्यादा कटी थी। सरफराज भूरे का आर्म एक्शन इतना ऊंचा नहीं है, लेकिन कंधे के जोर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। भूरे राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, अच्छा शॉट वी की शक्ल में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, बढ़िया फील्डिंग। दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ 73 रनों पे पहुंचा है एनआर का स्कोर। बलवंत की बैटिंग में ये थोड़ा सा सुधार पिछले कुछ मुकाबलों में हम देख रहे हैं कि सीधे बैट से खेलने की ज्यादा कोशिश अब वो कर रहे हैं। देखना है दीपक मडवी सामना कर रहे हैं सरफराज भूरे का। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, रिवर्स खेला है, गजब का शॉट, 6 रन। ये उनका ट्रेडमार्क है। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला तो, डीजे वाले बाबू और उसमें ये शॉट ना हो, सिग्नेचर उनका। क्या गजब का शॉट खेला है, 6 रन। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं एनआर? जो पहला मुकाबला था एनसीपी का, वहीं हार रही थी। दीपक मडवी ने उस मुकाबले को जीताया था और अब क्वार्टर फाइनल में 38 पे बल्लेबाजी कर रहे। 3 गेंदें बाकी है। सरफराज भूरे, फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, क्लीन बोल्ड।
पूरे हो गए अक्का बक्का। शॉट ऑन साइड में बॉटम हैंड का बेहतरीन इस्तेमाल, गगन बेदी छक्का, सुल्तानी छक्का। आसमानी तूफानी और सुल्तानी छक्का लगा दिया और स्कोर को पहुंचा दिया 86 रनों पर। आज वैसे भी 8 फरवरी है, मोहम्मद अजहरुद्दीन का जन्मदिन है, भारत के पूर्व कैप्टन। 8 फरवरी 1963 में जन्म हुआ था अजहरुद्दीन का। आज भारत के नाम 2 बहुत बड़े इतिहास हैं। 432 विकेट लेकर कपिल देव ने उस वक्त का माइलस्टोन टेस्ट क्रिकेट में किया था, जब 431 का रिचर्ड एडली का रिकॉर्ड तोड़ा था 1994 में। आज ही के दिन फिरोज शाह कोटला दिल्ली में पाकिस्तान के 10 के 10 बैट्समैनों को आउट किया था अनिल कुंबले ने 74 रन देकर 1999 में। खेल की शुरुआत होती हुई अच्छी गेंद विकेटों के ऊपर से चली गई, तो कुल मिलाकर 6 ओवर में रन बने 87 रनों की चुनौती वकील स्पोर्ट मापोली के सामने रखी है एनआर बोरपाड़ा ने। मनीश्री नरेश मेघ राजानी जी मौजूद हैं, वो इस शो में आए हैं। मैं उनका पहले हार्दिक स्वागत करता हूं एनसीपी कप में वन मैन शो खालिद गुड्डू से। और वो भी जानते हैं और सारा हिंदुस्तान जानता है कि जो भिवंडी में टेनिस क्रिकेट है वो सबसे बढ़कर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्पर्धाएं होती है। तो मैं चाहूँगा कि हमने हमेशा हमारा एक मैसेज रहा है कि क्रिकेट फॉर पीस एंड क्रिकेट फॉर यूनिटी, क्रिकेट एकता और अखंडता के लिए, क्रिकेट अमन और शांति के लिए। कई दर्शक इस वक्त मैच को देख रहे हैं टेलीविज़न सेट यूट्यूब पे। तो मैं नरेश जी आपसे कहना चाहूँगा कि आप क्रिकेट के शो में जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस क्रिकेट मैच के जो आयोजक हैं आफ्ताब अंसारी जी और वसीम अंसारी जी, इनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने अपने नई जनरेशन को एक अच्छी दिशा दी है, एक अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और बच्चों में खेल भावना जब जागृत होती है तो वो दुनिया का कोई भी काम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से कर सकते हैं, हर फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो ना कि सिर्फ जिस्म को तंदुरुस्त रखता है बल्कि दिमाग को भी तंदुरुस्त रखता है। तो मैं फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूं सभी बच्चों को। और मैं आपसे सभी से गुजारिश करूंगा कि भिवंडी शहर एक ऐसा मिनी इंडिया है कि जहां से आप टेस्ट क्रिकेट को या T20 में भी अपने बच्चे जा सकते हैं, अगर वो लेदर बॉल की प्रैक्टिस अच्छे से करें, अच्छे से गियर उनको सप्लाई किए जाए, हेलमेट, पैंट्स, सभी नी गार्ड्स, तो वो अच्छे से बगैर डर के लेदर बॉल का भी गेम अच्छा यहां पे डेवलप हो सकता है। और यही बच्चे आगे टेस्ट क्रिकेट में T20 में बढ़ेंगे। मैं फिर से आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके बच्चे बहुत आगे बढ़े और इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पर जाकर भिवंडी शहर का नाम रोशन करे। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज।
धन्यवाद नरेश राजानी जी, जिन्होंने, और आपकी मालूमात के लिए कि वकील स्पोर्ट मापोली जो बल्लेबाजी करने जा रही है, अदनान बाबे और उनके सहयोगियों ने मापोली में एक एकेडमी खोली है लेदर क्रिकेट की, जहां बच्चों को सिखाया जा रहा है। वहां थोड़ी देर में भारत के माजी ओपनर गुलाम परकार की क़यादत में सिखाया जाएगा, जहां से अब एक रास्ता खुलता है इस तालुके के लिए कि उनके बच्चे लेदर में भी आगे बढ़े। बहरहाल लौट चलते हैं इस मुकाबले की तरफ, जहां पर लक्ष्य रखा है 87 का, और मापोली ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। वही दो बैट्समैन भेजे थे जिन्होंने लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में गेंदबाजी का जुलूस निकाला था। अब देखना है कि क्या करारा जवाब रहता है उनका, वैभव पाटिल और शाज थानवाल का। आइए सुनते हैं सदाबहार क्रिकेट में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरज से। Thank you very much, Siddiq Bhabe. Big target in front of Hockey Sports Mahapoli. 87 runs to get in 6 overs. Required at 14.50 runs per over. Exactly. Both openers can be very devastating. Man in form, Vaibhav Patil. Probably will take the strike for the first ball, and it is going to be Santosh Madhvi with the ball. A very experienced campaigner from NR Borpada, Santosh Madhvi. He always loves to bowl with passion, aggression and energy. Such a great bowler he is. Gonna be very interesting contest between Santosh Madhvi and Vaibhav Patil. So far Vaibhav Patil has scored more than 100 runs in this competition. (127 runs under his belt in this NCT Trophy 2017. Here we go, first ball of the innings. In the air, who's under it? Mid on, he takes it. Javed takes the catch. This played very awkwardly and well taken by Javed. This is a terrific start from Santosh Madhvi, and the prize wicket has gone now. Vaibhav Patil is out for duck. What a delivery. Shot rising in front of chest. Vaibhav Patil played very awkwardly. That was very, very unorthodox kind of stroke. Nothing short for me. नरेश राजानी जी हमसे जाते हुए उन्होंने कीमती समय दिया। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपका आभार व्यक्त करती। New batsman in is Umesh Thanwal on strike now. Again extra bounce and another wicket. Finger goes up. बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। इससे अच्छी गेंदबाजी क्या होंगी कि दोनों गेंदें गुडलैंड पे पड़ी थी और दोनों में अधिक उछाल था, और बैक टू बैक दोनों बैट्समैन शून्य पे आउट। But we winning the battle at the moment. 2 wickets in 2 balls. क्या खूबसूरत बॉलिंग एक्शन है उनका, मानो कोई रेस का घोड़ा, अरबी घोड़ा दौड़ रहा हो, और क्या खूबसूरत रिदम में वो गेंदबाजी करते हैं। दूसरा झटका वकील स्पोर्ट मापोली को। He hasn't allowed the both batsmen to get inside line of the ball and play a stroke. Both batsmen found themselves in awkward position. Both openers dismiss on 0. He's on hat trick now. और 2 इनाम अब क्वार्टर फाइनल से बढ़ चुके हैं। जियो का सिम जो
सलीम अंसारी के सपूत अब्दुल्ला अंसारी की तरफ से दिया जाएगा और गफ्फार की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। संतोष मडवी हैट्रिक पर घेर लिया है बैट्समैन इरशाद अंसारी को। Change of pace down to point. Batsman played it and gets a single. बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी हम देख रहे हैं मडवी की। चेंज ऑफ पेस किया था और इरशाद को भी पता नहीं था कि हैट्रिक पर इस तरह की गेंद उनका स्वागत करेंगे। ये भी दीपक मडवी की तरह बहुत ही शांत क्रिकेटर और हमेशा अपोजिशन साइड को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं संतोष मडवी। इस मर्तबा पुल हवा में, एक और विकेट। Is right on top. Is on fire with the ball. Just one ball left in first over. Slower one, gets it through between mid-off and extra cover for 4. That's the wicket taken by Santosh Madhvi. First one was Vaibhav to go, brilliantly taken by Javed, running catch, the captain of NR. Then Shaz Tanwal with the beauty. Rising delivery, tried to pull top edge. Well taken by wicketkeeper Deepak Madhvi. Celebration there. Then third wicket, short arm pull. There is a fielder in deep. Sandeep Madhvi held easy. And last one, I think, lovely looking try. Firmly driven past the mid-off for 4. बहुत ही सफल ओवर रहा। 5 रन 3 विकेटों के नुकसान पर वकी स्पोर्ट्स मापोली। बहुत अच्छी संख्या में दर्शक इस समय खेल का मजा लेते हुए ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला एनसीपी ट्रॉफी 2017 का इस समय आप देख रहे हैं। नया ओवर लेकर कैप्टन जावेद। उछाल दिया है, बढ़िया शॉट इनफील्ड के ऊपर से खेलते हुए। 2 रन कम से कम मिलेंगे। देखना है कि अंपायर का क्या निर्णय आता है। 2 रन बनते हुए स्कोर में क्या बलवंत जब फील्ड कर रहे थे तो सेफ फील्ड किया या नहीं, अंपायर अपना निर्णय बता दें।
जो भी निर्णय अंपायर का आखिरी रहेगा 2 रन। और ब्रेक अंदर की तरफ आई थी गेंद, पहले बाउंस पर फील्ड करते हुए पॉइंट के खिलाड़ी। मैच पर इस समय पकड़ तो एनआर की नजर आ रही है। यहां से 80 रन बनाना है और आपके 3 विकेट सस्ते में आउट हुए। संतोष मडवी का एक ओवर बचा हुआ है। गेंद हवा में है, मिस टाइम शॉट, आसान सा कैच। निकल रही थी गेंद, हालांकि ओवर पिच लगभग बन रही थी। गेंद ने टप्पा खाया और थोड़ी सी घूमी बाहर की तरफ। दूर से खेले थे, इस वजह से कंट्रोल में नहीं थे शॉट के आसिफ शेख। 4 रन बनाकर आउट हुए नए बैट्समैन कैप्टन बबलू। 4 में से 3 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए हैं। इस बार छोटी बैकलिप से फ्लिक करते हुए केवल 1 रन। एनआर बोरपाड़ा के लिए दीपक मडवी ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली। 38 रनों की लाजवाब पारी। 20 रन बनाए थे बिंदास ने। कदमों का इस्तेमाल, अच्छा शॉट, गेंदबाज के सिर के ऊपर से 4 रन। कप्तान बबलू, ये देखिए सीधे प्लेट से डाउन द ग्राउंड खेला था, स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन। दिलकश शॉट। इस बार इंतजार करते हुए पुल कर दिया है, लेकिन फील्डर के पास और कहां जा रहा है ये देखिए किस तरह से बबलू आउट हुए। पहले ही आगे निकले थे, पीछे हटे, अगेंस्ट द टर्न खेला, सीधा आउटफील्ड में कैच के रूप में बढ़िया कैच। कल्पेश थे वहां पर। धीरे धीरे दर्शक अब स्टेडियम के बाहर निकलते हुए, शायद वो वकी स्पोर्ट्स के दर्शक होंगे। एक के बाद एक लगातार विकेट्स गिरते हुए, ये जावेद को पहला विकेट मिला था, आसिफ को आउट किया था उन्होंने। उसके बाद बबलू ने एक अच्छा शॉट खेला था, चौका लगाया था, लेकिन अगली ही गेंद पर वो भी कैच आउट हुए डिप स्क्वायर लेग की तरफ। आखिरी क्षणों में हालांकि उन्होंने अपने स्ट्रोक को बदला था। पहले सोच रहे थे कि आगे निकलेंगे, शॉर्ट पिच गेंद जरूर मिली थी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए, खाली क्षेत्र में नहीं खेल पाए। आधी टीम बहुत सस्ते में लौट चुकी है पेविलियन में। नए बैट्समैन रविश और नया ओवर लेकर संतोष मडवी। बहुत बढ़िया गेंद, मजबूर होकर छोटी बैकलिप से खेलना पड़ा था इरशाद अंसारी को। संतोष मडवी जिस चीज के लिए जाने जाते हैं वही चीज उन्होंने आज की है। विकेट टेकिंग गेंदबाज है, विकेट्स निकाले पहले ही ओवर में। पहले ओवर में 3 झटके दिए उन्होंने,
मिस टाइम शॉट और एक और बैट्समैन को जाना हो। अपने कद का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाजी में। लंबे ऊंचे कद के हैं जिस वजह से उनको अतिरिक्त उछाल मिलता है, लेकिन गेंदों की लेंथ पर कितना अच्छा कंट्रोल है, लाइन पर कितना अच्छा कंट्रोल है। वेल डायरेक्टेड शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे उस हुक शॉट को रविश भी खाता नहीं खोल पाए। 4 बैट्समैन अब 0 पर आउट हो चुके हैं। नए खिलाड़ी भी क्रीज पर कपिल। एक और बेहतरीन गेंद बिल्कुल बॉक्स में पिच होती हुई। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरी है यहां पर वकी स्पोर्ट्स की। क्या ये भी आउट है? जी हाँ। और इस टूर्नामेंट में दूसरे गेंदबाज बने हैं जिन्होंने 5 विकेट एक पारी में लिए हैं। आगे रखा था, फुटवर्क की कमी, थोड़ा सा पीछे हटते हुए खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी सिरा और आसान सा कैच विकेट कीपर दीपक मडवी के लिए। समतनगर के हारून ने 11 रन देकर 5 विकेट्स लिए थे और संतोष मडवी ने अभी तक 6 रन देकर 5 विकेट्स लिए हैं। अभी भी उनके स्पेल में 2 गेंदें शेष। स्कोर कार्ड में केवल डब्लू नजर आते हुए। विकेट्स के डब्लू। इस बार राडे बैट से खेला है जमीनी रास्ते से 1 रन के लिए आउटफील्ड में। एक तरफा हो गया ये मैच। काफी निराश किया वकी स्पोर्ट्स ने। अभी तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला था इस टूर्नामेंट में और काफ़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे थे, लेकिन फैंस निराश होते हुए वकी स्पोर्ट्स के। सीधे शॉट मिड विकेट पर खेला, मिसफील्ड हुआ वहां पर जावेद से। 1 रन पूरा। तो टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन स्पेल खत्म हुआ संतोष मडवी का। बेस्ट बॉलिंग फिगर इस एनसीपी कप 2017 का संतोष मडवी के नाम। 2 ओवर 7 रन और 5 सफलताएं। निश्चित कर दिया है एनआर बोरपाड़ा ने वकी स्पोर्ट्स मापोली टीम को। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है ज़हीर को। कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वहीं वकी स्पोर्ट मापोली है जिन्होंने कल 98 रन बनाए। प्रार्थना के सामने 3.3 ओवर में 72 रन का लक्ष्य पूरा किया। एनआर के काफ़ी तीखे तेवर और पहली टीम है जो सेमीफाइनल में इस वक्त दस्तक देने जा रही। ज़हीर इरशाद के लिए ऊपरी सिरा और इरशाद भी क्या आउट हो
8 विकेट गिर चुके हैं और 15 रन, और सभी बैट्समैन कैच आउट हो चुके हैं और उनका कैच का रिकॉर्ड तो बना था 10 के 10 बैट्समैन का अंजुमन ट्रॉफी में। ये अगर मुकाबला फिरदौस स्पोर्ट देख रही होंगी तो शायद खुशी मना रहे होंगे कि हैट्रिक लोएस्ट स्कोर का जो रिकॉर्ड है उनके नाम नहीं रह सकता। मुजाहिद भाभी भी वहां हैरान परेशान नजर आ रहे। राइट आर्म ओवर द विकेट, जाहिर इस मरतबा बल्ले के फेस को खोला, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है। 2 रन पूरे हुए हैं। तीसरे के लिए नहीं जाना चाह रहे थे बैट्समैन। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है, 17। जाहिर राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे। इस मरतबा बहुत खूबसूरत ड्राइव, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, गेंद को उठाया, 1 रन। स्कोर 18 रनों पे पहुंचा है, 8 विकेटों के नुकसान पे। 18 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। मुझे लगता है कि गेंदबाजी पर बहुत काम करना पड़ेगा वकी स्पोर्ट्स को यहाँ से आगे, क्योंकि गेंदबाजों ने निराश किया जिस वजह से दबाव में आ गए बल्लेबाज। इस मरतबा बैकलीफ को नीचा किया, खेल दिया डीप मिड ऑफ पे, 1 रन। स्कोर 19 रनों पे पहुंचा है, 8 विकेटों के नुकसान पर। निराशा हाथ लगती हुई दर्शकों को, जबकि पिछला मैच बहुत ही हॉट मैच रहा था बालाजी और बी इंडियन के बीच में। इस मरतबा निकल के मारा गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर, 6 रन। मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऑब्वियसली आप बहुत साफ बात कह रहे हैं। हमेशा एक क्षेत्र या एक तरह आप किसी चीज़ को लेकर नहीं चल सकते। इस मरतबा बैकलीफ को नीचा किया, ड्राइव करते हुए गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, 1 रन। 26 पे पहुंचा स्कोर। और टूर्नामेंट को जीतना है आपको, तो खेल के तीनों भी विभागों में अच्छा करना होगा। एक भी कमजोर करिए आपके पास है तो आप मुकाबला हार जाते हैं। यहाँ पे ओवर समाप्त होते हुए 4 स्कोर है, 26 रन। सिर्फ सरफराज भूरे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे। लेट देवीदास ट्रॉफी जो चैलेंज पे हो रही है 10, 11, 12 को, उसका लॉट फॉर्म कल 6 बजे रहेगा चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। ग्रीनलैंड होटल पे रहेगा उसका लॉट शाम में 6 बजे। एवरग्रीन क्रिकेट से सीधा ग्रीनलैंड होटल जाइए और लॉट फॉर्म में शामिल हो जाइए। जावेद गेंदबाजी के लिए बुलाए गए हैं। 2 विकेटें हाथ में। सरफराज भूरे 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
इस मरतबा लॉफ कर दिया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, 6 रन सरफराज। तीस पे पहुंचा है स्कोर। वकी स्पोर्ट्स की ओर से तो एक ही खिलाड़ी चला है इस मैच में, सरफराज भूरे। गेंदबाजी भी अच्छी की उन्होंने, 2 ओवर में 22 रन दिए थे, किफायती गेंदबाज वही रहे थे। इस मरतबा फिर से निकल के मारा लेकिन बिंदास मौजूद, आउट हो गए सरफराज। एनसीबी ट्रॉफी राष्ट्रवादी की घड़ी 10:10। इस मरतबा स्वीप किया और इसके साथ